Good morning. Good morning, the second year students of MN Homeopathic Medical College. I will convey some lectures on organon of medicine. So, from the Department of Organon of Medicine, I am Dr. Shaurik Ghosh from in the college MN Homeopathic Medical College, Bikaner. And today I will convey some messages actually that our teachers told us कि organon को पढ़ना कैसे है. Recently there is some conversation with some students और मुझे एक चीज़ ये बहुत important लगा कि the students are confused regarding what to read and where from they should read organon. इसका कारण यह है कि there are lot of books in organon presently and there are many types of books, many types of reference book, जिस कारण से एक तो organon of medicine जो हैनीमैन ने लिखा है ये the aphorism books, the students do not study these aphorism books. So why they do not study these aphorism books? Because the reference book has made easy something regarding the question and answer. I will discuss actually organon को अच्छे से जानने के लिए आपको कौन सा किताब पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, what you have to read and how you have to read. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. एक बार अगर हम लोग ये चीज़ जान जाए, क्योंकि आप लोग सेकेंड ईयर में हो, तो ये चीज़ एक बार हम लोग के सामने क्लियर हो जाए तो आपको मतलब इट विल हेल्प यू फॉर द लाइफ टाइम इंक्लूडिंग योर एकेडमिक एज वेल एज योर प्रैक्टिस करियर. Okay, so we will discuss about how to read organon and what to read from organon. So first of all, we will see what is in our syllabus. So presently today is 18th of August 2020 and you will see what is the syllabus presently which has been given by the Central Council of Homeopathy. Okay, so let us find out the syllabus from here. So we can see that there from the organon of medicine, this is the organon of medicine on homeopathic philosophy. Okay, and I am telling you this, that we will go to the syllabus of organon of medicine, and this is the second year syllabus. What you can see here, this is the first BHMS and this is the second BHMS. Now if you go to the second BHMS syllabus, you go to the Central Council CCH इंडिया का वेबसाइट में आप जाओगे तो वहाँ पे लेटेस्ट सिलेबस आपको मिलेगा. तो सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि सिलेबस में क्या है. तो उसमें अपन देख रहे हैं कि जैसे कि ये एफोरिज्म नंबर 29 से 104 है, from the 5th and 6th edition translated by R.E. Dudgeon and William Borick. फिर होम्योपैथिक फिलोसफी, चैप्टर्स ऑफ फिलोसफी में जो कुछ चैप्टर नंबर्स दे दिया गया है और इस चैप्टर्स में जैसे कि स्टुअर्ट क्लोज, J.T. केंट एंड H. रॉबर्ट्स का चैप्टर्स है, फिलोसफी है. नेक्स्ट इज देयर इज सिम्टोमेटोलॉजी और सिम्टोमेटोलॉजी के बारे में कुछ डिटेल्स है, कॉजिशंस के बारे में डिटेल्स है, केस टेकिंग के बारे में डिटेल्स लेने को बोला है, एंड केस प्रोसेसिंग जिसमें एनालिसिस ऑफ सिम्टम, इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम, मायस्मेटिक डायग्नोसिस, टोटलिटी ऑफ सिम्टम. नेक्स्ट वी कम टू द प्रैक्टिकल वेयर द सेकंड BHMS स्टूडेंट्स will start the practical and maintain the case records of at least 10 acute cases. Okay, and there we come the examination, the theory and the प्रैक्टिकल. थ्योरी में एक पेपर होता है 100 मार्क्स का होता है. इसमें आप डिवीजन देखो, लॉजिक, साइकोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ होम्योपैथी एंड एफोरिज्म्स 1 to 104 एंड होम्योपैथिक फिलोसफी इट कंटेन्स 20 मार्क्स. देयर प्रैक्टिकल इंक्लूडिंग वाइवा, देयर इज द 100 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. उसमें केस टेकिंग, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एंड ओरल का डिस्ट्रीब्यूशन है. सो यू विल गेट दिस डिस्ट्रीब्यूशंस इन योर वेबसाइट. तो मैं इसलिए इतना डिटेल्स नहीं पढ़ा. अब हमको ये देखना है, ये सोचना है. आप एक चीज देखो कि सिलेबस में जो चीज दिया हुआ है
तो देयर इज वी आर गेटिंग व्हाट टाइप ऑफ बुक्स, वी आर गेटिंग द ऑर्गन ऑफ मेडिसिन बुक्स by Hahnemann, translated by William Borick and Dijon. We are getting the homeopathic philosophy of Kent, Robert and Stuart Close, and there we are getting something regarding the aphorisms 1 to 104 and the totality, causation, symptomatology, ये सारे चीज जो दिया हुआ है। सबसे पहले आप एक चीज सोचो, इस सिलेबस में कहीं पे हैनीमैन, रॉबर्ट, केंट और स्टुअर्ट क्लोज छोड़ के किसी और ऑथर का नाम लिखा है? नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। हम लोग रेफरेंस बुक के लिए किसी का भी किताब पढ़ सकते हैं, वी कैन रीड एनीबॉडीज बुक एज अ रेफरेंस बुक, लेकिन सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि एक्चुअली टेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसमें मैं आपको सबसे पहले ये दिखाऊंगा कि हम लोग पढ़ते कैसे हैं, मतलब आप लोगों को पढ़ना कैसे है। जो हमारे गुरु ने सिखाया था, जो होम्योपैथी का बुक राइटर्स भी है, उनसे हमने सीखे थे। हमने तो हनीमैन से नहीं सीखा, हमने डॉक्टर आर ज्वादर से सीखा, रमन मान्ना से सीखा, अभी और भी डॉक्टर अधिकारी से सीखा, डॉक्टर सुभाषिस गांगुली से सीखा। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स थे और इन्होंने आज का डेट में ये कुछ लोग तो मतलब पायनियर्स ऑफ स्टॉलवर्ड्स में आ गए। डॉक्टर आर ज्वादर का डिक्शनरी ऑफ होम्योपैथी, इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक इन ऑर्गन ऑफ मेडिसिन ऑफ थ्रू आउट इंडिया एंड अब्रॉड। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप लोग सबसे पहले इस चीज को बहुत अच्छे से इस लेक्चर को समझो कि मैं क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि ऑर्गन ऑफ मेडिसिन जो है इसके लिए कुछ पर्टिकुलर मतलब प्रोसेस है इसको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ किताब दिखाऊंगा। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है मतलब कि सर हमको जो है ना ये ऑर्गन हम लोग पढ़े कहाँ से, फ्रॉम वेयर डू वी रीड। देखिए, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन लिखे थे डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन ने। क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन ने अपना लाइफ टाइम में 5 एडिशंस ऑफ ऑर्गेनन लिखे थे और उनका जो 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन जो है उसको पोस्थुमस एडिशन कहा जाता है और ये उनका डेथ के लगभग 78 इयर्स बाद में पब्लिश हुआ था। तो हम लोग ये देखते हैं कि हैनीमैन ने होम्योपैथी का आविष्कार किया था 1796 में। उसके बाद 1810 में उनका पहला ऑर्गेनन आया और 1819 में सेकेंड एडिशन, 1824 में 3rd एडिशन, 29 में 4th एडिशन, 1833 में 5th एडिशन और 1842 में जब उनका 6th एडिशन कंप्लीट हो गया था तो उसके बाद उनका 1843 में बिफोर द पब्लिकेशन हैनीमैन का डेथ हो गया था। इस बाद में बहुत लंबी कहानी है, उसके लिए एक अलग सा चैप्टर बनेगा, अलग सा लेक्चर बनेगा कि व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन। लेकिन ये भी आपको जानना जरूरी है कि द 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन वाज पब्लिश्ड बाय विलियम बोरिक इन 1921। तो हम लोग जो है कि 5th एडिशन एंड 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ये दोनों एडिशन हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि 5th एडिशन में जो ऑर्गेनन में जो इंस्ट्रक्शंस हैनीमैन ने दिए थे वो अपना लाइफ टाइम में चला और होम्योपैथी बहुत सक्सेसफुल रहा। उसके बाद 6th एडिशन में जो इंस्ट्रक्शन और जो चेंजेस उन्होंने किया था उस समय में कुछ लोगों को ये चेंजेस एक्सेप्टेड हुआ, कुछ समय में ये चेंजेस एक्सेप्टेड नहीं हुआ था उस समय में। तो हम लोगों को जो बट बोथ द इंस्ट्रक्शन ऑफ द 5th एडिशन एंड 6th एडिशन both are applicable in our practice and both are successfully applied in our practice। इसलिए हमको 5th एडिशन एंड 6th एडिशन दोनों एडिशन पढ़ना है। तो अब पहले हम लोग देखेंगे तो 5th एडिशन एंड 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन दे आर इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस। Okay, so 5th and 6th edition of Organon, Hahnemann has written all the Organon in German language. So we cannot, as because many of us, or we can say that maximum of the Indian students, they do not know German language. जिनको जर्मन लैंग्वेज आता होगा वो जरूर जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट हैनीमैन जर्मन लैंग्वेज से पढ़े। लेकिन हम लोग को जो है कि अपना खुद का लैंग्वेज आता है, इंग्लिश, हिंदी एंड जो भी रीजनल लैंग्वेजेस है, तो बेटर वी आर हैविंग द बुक्स ऑन ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एंड दिस वाज ट्रांसलेटेड फॉर बिफोर, बहुत साल पहले ही जो ट्रांसलेटेड हो चुके थे। तो ये ट्रांसलेशंस हम लोग पढ़ते हैं। अब आपको मैं ये दिखाने जाऊंगा कि जो ट्रांसलेशंस ऑफ ऑर्गेनन है, अब हम लोग, मेरे पास कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर बीके सर का पढ़े या डाइजन पढ़े। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि हैनीमैन का जो ऑर्गेनन है, ये ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जो हैनीमैन ने बनाए थे, इसमें जो मेन कोर पार्ट है
तो ये पार्ट जो एफोरिज्म्स है, ये एफोरिज्म सारे किताब में एक ही जैसा ट्रांसलेशन हुआ है। इसमें कुछ एक हल्का सा डिफरेंस एक जगह पे है कि 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन कई और लोगों ने भी ट्रांसलेट किए थे, जैसे कि डाजन और बोरिक छोड़ के, जैसे कि स्टीवन डेकर का ट्रांसलेशन था, तो W.B. ओरेली का ट्रांसलेशन था, एंड ओरेली का जो ट्रांसलेशन था उसका लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है। मैं शुरू से आपको दिखाऊंगा कि देखिए मेरे पास जो है नाउ आई हैव, मैं अभी लाइब्रेरी से 3 किताब लेके आया हूँ, ठीक है। ऑल दीज आर ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, ऑल दीज आर ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, द ट्रांसलेशन ऑफ हैनिमैन्स ऑर्गेनन फ्रॉम जर्मन टू इंग्लिश। इसमें एक किताब ये है, दैट इज द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन 5th एडिशन ट्रांसलेटेड बाय आर डी डाजन एंड 6th एडिशन ट्रांसलेटेड बाय विलियम बोरिक। तो ये एक ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन है। दूसरा है कि दिस इज द बुक ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, द 5th एडिशन ट्रांसलेटेड बाय डॉक्टर B.K. सरकार, एंड इट इज taken forwarded by J.N. Mojumdar and translated. Actually, this is the translation is mainly the translation of R.E. Dajan. There are the commentary of organon by B.K. Sarkar, particularly in this book. And this is another book. This is the 5th and 6th edition of organon by Samuel Hahnemann, which is translated at it is from the again the same thing, William Borick and R.D. Dajan. इसमें कुछ करेक्शन एंड रिट्रांसलेशन कुछ किया गया है कि बाय डॉक्टर महेंद्र सिंह एंड डॉक्टर सुभाष सिंह। सो आई विल टेल यू दैट ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जो है, ये ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन हैनीमैन ने जो लिखे थे, इनका ट्रांसलेशन हो चुका है इंग्लिश में, और वो इंग्लिश ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इस इंग्लिश ट्रांसलेशन में इफ यू गो फ्रॉम द बिगिनिंग वी विल गेट सम प्रीफेसेस जो हैनीमैन ने लिखे थे। अब हमको ये देखना होगा कि हैनीमैन ने जो लिखे थे, व्हाट हैनीमैन हैज रिटन, ठीक है। आप एक चीज को बहुत अच्छे से समझ लो, हैनीमैन ने खुद जो लिखे थे, और एक है कि हैनीमैन का जो राइटिंग है उसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन, कोई टिप्पणी, जो भी अपन कह सकते हैं, तो वो क्या है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि हैनीमैन ने खुद ने क्या लिखा था। हैनीमैन ने जो खुद ने लिखा था उसका जो डायरेक्ट ट्रांसलेशन है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो हैनीमैन ने जो खुद लिखा था, इसमें अब देख सकते, कोई भी एक किताब उठा लो, ऑल आर द सेम। कैसे सेम है और कहां तक सेम है ये बता दूं। पहले जो है कि प्रीफेसेस जो है हैनीमैन का 1st एडिशन से लेकर 6th एडिशन तक का प्रीफेस है। प्रीफेस क्या होता है कि कोई राइटिंग शुरू होने से पहले उसका एक छोटा सा ओवरव्यू उन्होंने क्या लिखा है, क्या किस बात का ये लिखा है, कि इससे सर्कमस्टेंस में ये लिखा गया है, ये प्रीफेस में लिखा रहता है। तो अगर किसी भी किताब को अगर आप उठाते हो, नया किताब को, यू जस्ट गो थ्रू द प्रीफेस, यू विल गेट द आइडिया अबाउट दैट बुक। तो प्रीफेस टू द 1st एडिशन, प्रीफेस टू द 2nd एडिशन, प्रीफेस टू द 3rd एडिशन, प्रीफेस टू द 4th एडिशन, प्रीफेस टू द 5th एडिशन, okay, and you will get some introduction to the 5th edition, and here is the preface to the 6th edition and introduction to the 6th edition with contents. पहले जो पार्ट है, पहले पार्ट मैं ये बताऊं आपको कि हम लोग को क्या मिल रहा है कि 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th 6 एडिशन का प्रीफेस मिलेगा। ये प्रीफेस हैनीमैन ने जो खुद लिखे थे, ये इन्होंने डॉक्टर R.D. डाजन ने ट्रांसलेट किया। ओके, तो सही हैनीमैन ने जो भी एडिशन उनका जो जिस साल में जो भी एडिशन आया था उसका प्रीफेस का ये ट्रांसलेशन है। तो ये सेम है। अब ये जो प्रीफेस है ये इसमें सेम है, इसमें सेम है, द सेम थिंग इज रिटेन हियर। आप चाहे हैनीमैन का बुक उठाओ, मतलब सॉरी डाजन का बुक उठाओ, B.K. सरकार का बुक उठाओ, महेंद्र सिंह, सुभाष सिंह सर का बुक उठाओ, एवरीथिंग इज सेम। और भी बहुत सारे राइटर्स हैं, मेरे सामने यही 3 किताब, तो मैं यही 3 ही दिखाया। तो इसमें बहुत सारे जो बुक्स है जो ट्रांसलेशंस किया हुआ है, उसमें आप देखना ये जो 6 प्रीफेस है, 2 इंट्रोडक्शन है और 1 कंटेंट है, ये हर किताब में एक ही है, सेम है, सेम। दैट वी हैव टू रीड, क्योंकि 1st एडिशन में किस सर्कमस्टेंस में हैनीमैन लिखे थे इसको हमको जानना तो चाहिए। तो 2nd एडिशन, 3rd, 4th, 5th, 6th एडिशन का जो सर्कमस्टेंसेस है ये हमको जानना चाहिए। ओके, सो वी विल गेट दिस बुक दैट फर्स्ट पार्ट इज द प्रीफेस एंड इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, इसको आप, मैं आई रिपीट, फ्रॉम B.K. सरकार, फ्रॉम R.E. डाजन, फ्रॉम एनी अदर बुक,
ये सेम चीज है और उसको आपको उसी किताब से पढ़ना है, ठीक है। बाद में हमारे बहुत रेस्पेक्टेड सर लोग हैं, जो टीचर्स हैं, जो पायनियर्स हैं, तो इन्होंने जैसे कि AK दास सर है, TP मंडल सर है, डॉक्टर थ्रम्बे सर है, आपका नगेंद्र बाबू सर है, और बहुत सारे टीचर्स के किताब हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन द थिंग इज दैट कि वी हैव टू फर्स्ट रीड दिस बुक, दिस डायरेक्टली फ्रॉम हैनीमैन, देन विल गो टू द एक्सप्लेनेशंस ऑफ दिस पार्ट। ओके ना, नेक्स्ट पार्ट, तो पहले पार्ट क्या हो गया, प्रीफेस एंड इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि ये जो चीज है, देयर विल गेट द एफोरिज्म्स, यू विल गेट द एफोरिज्म्स। सो एफोरिज्म्स आर शॉर्ट पैराग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम truthful scientific contents, and these are very, I consider Organon of Medicine a very sacred book। जैसे हिंदू के लिए गीता होता है, मुसलमान के लिए कुरान होता है, क्रिश्चियन के लिए बाइबल होता है, सिख के लिए गुरु ग्रंथ होता है, ऐसे हमारे होम्योपैथ के लिए ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, दिस इज आवर सेक्रेड बुक एंड हमको इसका ओरिजिनल किताब से पढ़ना चाहिए। अगर हम लोग इस किताब से पढ़ेंगे तो हमको हैनीमैन का आशीर्वाद मिलेगा, हमको सारी चीज जो है ना क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम ऐसा भी हो सकता है कि बिना कोई एक्सप्लेनेटरी किताब पढ़े आप खुद ही एक्सप्लेन कर सकते हो। ये मेरे लाइफ में हो चुका है। आई हैव रेड सम इन माय स्टूडेंट लाइफ, कुछ ही डॉक्टर टीपू मंडल, डॉक्टर अशोक दास का, डॉक्टर महेंद्र सिंह सर का किताब मैंने भी पढ़ा है एज पर रेफरेंस बुक। लेकिन होता क्या था, मैं बताऊं एक चीज, कि जब मैं ऑर्गेनन पढ़ता था और ऐसे कई बार मैं एग्जाम देने गया, ओनली रीडिंग द एफोरिज्म्स, आधा घंटा एफोरिज्म्स को बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से सोचा, और उसके बाद 30 पेज का ऑर्गेनन लिख के आ गया। एंड आई कैन डू दैट, तो यू कैन डू दैट। तो ये व्हेन यू कैन डू दैट, इफ यू अंडरस्टैंड दिस ऑर्गेनन यू कैन डू दैट। तो यही चीज आज का स्टूडेंट में थोड़ा कमी है इस जगह पे। ये डायरेक्टली आप लोग जो रेफरेंस बुक पढ़ने जाते हो, पहले थोड़ा सा रुको, पहले ये पढ़ो। ओके, सो वी विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, दैट इज द वी विल गो टू द एफोरिज्म पार्ट। अब एफोरिज्म्स जो है हम लोग का सिलेबस में, एफोरिज्म्स में इट इज 294 एफोरिज्म फ्रॉम द 5th एडिशन एंड 291 एफोरिज्म इन द 6th एडिशन। ठीक है, तो दिस इज द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, द एफोरिज्म पार्ट। तो एफोरिज्म पार्ट अगर हम डायजन का बुक खोले, अब एफोरिज्म पार्ट अगर हम BK सरकार का बुक खोले, यही चीज तो समझाना है, यही चीज कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों में। जिसको ये चीज पता है, जिनको नहीं पता है आप मालूम कर लो। यही है एफोरिज्म पार्ट। अगर मैं सुभाष सिंह सर का बुक खोलूं, ठीक है, all language are the same, these languages are from the basic translation of Dr. Adi Dajan and 6th edition translation of Dr. William Borick। okay, मैं एक एग्जांपल आपको दे सकता हूं, जैसे कि अगर सुभाष सर का बुक खोले, वहां पे एफोरिज्म जो इन्होंने लिखा है, तो ये एफोरिज्म हैनीमैन का ट्रांसलेशन है। ये जो है द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू क्योर एज इट इज टर्म, ये फर्स्ट एफोरिज्म है। इधर भी फर्स्ट एफोरिज्म वही है, द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म, यही एफोरिज्म इधर है, द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म। ऐसे अगर 291 एफोरिज्म 6th एडिशन में आप देखोगे एंड 294 एफोरिज्म इन द 5th एडिशन में देखोगे, ऑल द लैंग्वेजेस आर सेम। तो आप लोगों को सबसे पहले ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन रिटेन बाय हैनीमैन, ट्रांसलेटेड बाय डॉक्टर आडी डजन और विलियम बोरिक, और तो ये किताब लेना है। इफ यू गो टू BK सरकार, ये एफोरिज्म एंड प्रीफेस एंड इंट्रोडक्शन पार्ट सेम है। किसी भी किताब में ये जहाँ पे एफोरिज्म लिखा है, सबसे पहले हमको वो किताब उठाना है। आई हैव ऑल दीज 3 बुक्स इन फ्रंट ऑफ मी एंड ऑल द 3 आर द सेम, सो यू प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। हम कौन सा किताब पढ़े, किताब तो एक ही पढ़ना है, एफोरिज्म वाला किताब। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे, इसके बाद जो है there are some appendix part which was added later. This appendix part was not written by Hahnemann. This is, we can say, it was a details of discussion written by Dr. Adi Dajan, Richard Hughes and Richard Hell, and this
this appendix part, this is a separate part which has been added. तो जब ये डाजन का ट्रांसलेशन आया था उस समय से ये अपेंडिक्स पार्ट इसके साथ ऐड होता गया. दिस अपेंडिक्स पार्ट इज नॉट अ पार्ट रिटन बाय हैनीमैन. ये हैनीमैन का जो एफोरिज्म्स है उसका एक्सप्लेनेशन है, कंपैरिजन है फ्रॉम द फर्स्ट एडिशन टू द सिक्स्थ एडिशन. तो ये जो अपेंडिक्स पार्ट है इसको हम लोग हेल्प के लिए हम लोग देख सकते हैं. सपोज एक एग्जांपल है, जैसे कि ये जो टेबल है तो एक टेबल दिया गया है. दिस इज अ कंपैरेटिव स्टडी फ्रॉम द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एंड द मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस. आप लोग देख सकते हो. तो ये हैनीमैन ने नहीं बनाया, ये दिस इज लेटर ऑन दिस इज एडेड. एनीवे दिस अपेंडिक्स पार्ट इज ऑल्सो एडेड टू ऑल द अदर बुक्स. तो हम लोग अगर देखेंगे कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में क्या कितना पार्ट है या क्या पार्ट है, देखिए एक चीज क्लियर करना होगा. ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का क्या पार्ट है? हैनीमैन जब ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन लिखे थे ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट अगर देखोगे आप तो ऑल्दो इट इज वेरी रेयर, तो उसमें एक प्रीफेस है, फ्रंट पेज है, टाइटल पेज, नेक्स्ट एक टाइटल पेज है जिसके नीचे ऑडी सेपेयर लिखा है, यू नो दैट. और आफ्टर दैट प्रीफेस पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, एफोरिज्म पार्ट है. हैनीमैन का यही था. तो आप लोग ये जान लो कि प्रीफेस एंड इंट्रोडक्शन पार्ट, एफोरिज्म पार्ट, ये हमको पढ़ना है और एक एक लाइन इसका पढ़ना है और इसको बहुत अच्छे से समझना है. इसके बाद जो है कि कोई भी दूसरा किताब आप उठा लो जिसमें इस एफोरिज्म का या तो चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया, या तो पॉइंट वाइज डिवाइड कर दिया, या तो क्वेश्चन आंसर वाइज उसको एक्सप्लेन कर दिया गया, वो हमारा एग्जाम का हेल्प के लिए है. Okay, so first of all we are recapitulating that we have to read the organon of medicine first, and from there we will have the preface and introduction part with contents and the aphorism part which is originally written and by Hahnemann, translated by the other authors directly from Hahnemann, and there is an appendix part. So this appendix part has been added later on in the translated books. So हम लोग को सबसे पहले ये आइडिया क्लियर हो गया कि हम लोग को ऑर्गेनन में सबसे पहले पढ़ना क्या है. ये ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का ये किताब पढ़ना है जिसमें प्रीफेस एंड इंट्रोडक्शन पार्ट है, कंटेंट है, एफोरिज्म है और अपेंडिक्स है. ठीक है, इसको मोटे मोटे में 3 टाइप का डिवीजन कर सकते हैं. एक डिवीजन हो गया प्रीफेस एंड इंट्रोडक्शन पार्ट विद कंटेंट्स, एक है एफोरिज्म पार्ट और प्रॉपर टेक्स्ट पार्ट, और एक है अपेंडिक्स पार्ट. ऑल्दो अपेंडिक्स पार्ट वाज नॉट गिवन बाय हैनीमैन. ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू अबाउट द फिलोसफीज, क्योंकि अभी हमने सिलेबस देखा, ये इसी लेक्चर का कंटिन्यूएशन है.